Yeah, good evening, Dr. Tejashri. Are you able to hear me? Uh, Yes. yes, ma'am. I can hear you, ma'am. Good evening, everybody. We'll just do a quick check with Dr. Tejashri, and then we will start the webinar. Dr. Tejashri, are you able to? Yeah, I can see your video now. Yes, ma'am. Are you able to share your presentation? Yes, I'm trying. 1 minute. Okay, ma'am. My sound is clear? Yes, ma'am. I can hear Okay. you clearly. Yes, ma'am. I can see your presentation. Okay. Yeah, we are good to go. So we are going to start the webinar now. It is screen is moving or not? Are you able to see the screen? Yes, ma'am. I can see the screen. Okay. Ma'am, it's moving also. Yes, ma'am. Looks good, ma'am. Ma'am, I think you can just take it to the first slide. Uh, It is not moving actually. That is why. yeah, now it's moving. Yes, ma'am. It's on the first slide. Okay. Okay, so we can start now. Okay. Okay. Your voice is breaking on my side. My voice is clear. My voice is also breaking. Ma'am, your voice is clear. It's not breaking much. Like it's, I think 95% clear. Okay. Okay, ma'am. So we will start the webinar now. Good evening, everyone, and welcome to Gyan Vardhani session number 17. I'm Anand from Clensav team, and I thank each one of you to join us today as we embark on yet another enlightening journey of wisdom and knowledge enhancement. Before we begin, I would like to share a brief overview of the amazing Clensav app that we have developed over the last 5+ years. Clensav means clinic savvy, and it is the only mobile-based clinic management app in India that allows you to manage your clinical practice in a full or 100% offline mode. It has a very simple design. Clinsav helps doctors easily manage patients, appointments, case papers, full prescriptions, bills, fees, issue of pre-filled letters, manage finances, and doing follow-ups with patients for any outstanding dues. Clinsav also sends automated appointment reminders 1 day in advance to your patients through SMS, and it also gives you the ability to simply swipe and send custom WhatsApp messages to your patients. Now we shall start our today's webinar. Our today's webinar topic is Punaravartak Jwar, its application in clinical practice. Our distinguished speaker for today is Dr. Tejashri Bhalirao Patil. Dr. Tejashri is an Ayurvedacharya from R.A. Pudar Ayurvedic Medical College, Mumbai. She has 10+ years of experience and she has studied practical Ayurveda from Dr. Santosh Deshmukh sir. She has been actively doing consulting Ayurveda and Panchakarma since 2015. Dr. Tejashri has her clinic at Taloja Phase 1 Panvel, Navi Mumbai, as Vishwanil Ayurvedic and Panchakarma's clinic. She assisted Dr. Santosh Deshmukh sir as an Ayurveda and Panchakarma consultant at Madhavpriya Ayurvedic Clinic, Girgaon. Worked as a medical officer at Rashtriya Bal Swasthya Karyakram of BMC and as a house officer at KEM Hospital Ayurveda Research Department. Dr. Tejashri also hosts her own YouTube channel. On this, she posts videos regularly regarding Ayurvedic concepts which can be used in your daily life.
We shall be start sharing this in the comment chat for everybody soon. Dr. Tejashree, we are honored to have you with us today to conduct this webinar. Let us all welcome Dr. Tejashree Bhalirao Patil for today's session. Dear ma'am, you can start with your session now. Okay. Thank you so much for inviting me, and good evening all. So we shall start our lecture and our session today with of course Dhanvantari Stavan. Om Shri Dhanvantare Namaha. Our Sadguru Shri Chaitanya Sadguru Madhavnath Maharaj. Om Shri Sadguruve Namaha. Guru hai Santosh Deshmukh sir, and of course respected Gala sir and all the senior Vaidyas here. उन सभी को मेरा सादर प्रणाम. सो जो आज का टॉपिक है उसका जो पुनरावर्तक ज्वर का जो कंसेप्ट है, as we all know, this is the topic which is explained only in the चरक संहिता of बृहत्त्रयी. तो चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है उसका जो ज्वर अध्याय है उसमें हमें ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ मिलता है, एंड पुनरावर्तक ज्वर का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ पे हमें मिलता है. So we quickly go through the text in the Charak Samhita to brush up a little bit about this topic कि चरकाचार्य जी ने यहाँ पे क्या बताया हुआ है exactly about the पुनरावर्तक ज्वर. So this is the परिभाषा, या हम लोग संप्राप्ति भी कह सकते हैं उसको, कि what is the पुनरावर्तक ज्वर exactly. So it is said that असंजात बलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते वर्जमेतत् अनर्थस्य पुनरावर्तते ज्वरः दुर्हृतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवर्तते स्वल्पेनापि अपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः. The ज्वर which is coming again and again, that is पुनरावर्तन of ज्वर, अगर हमें दिखाई देता है पेशेंट में तो उसे हम पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं. बट व्हाट इज द संप्राप्ति ऑफ दिस पुनरावर्तक ज्वर? सो जब भी ज्वर हुआ है तो उसमें जो दोष प्रकोपित हुए हैं उनका अगर पाचन अच्छे से नहीं हुआ है, उनका संशोधन अच्छे से नहीं हुआ है, तो जो वो दोष है बचे हुए वो लीन अवस्था में धातुओं में जाके बैठ जाते हैं. दैट इज वी कॉल्ड एज धातुगत अवस्था ऑफ दोष. और जब भी ये दोष कुछ हेतु प्राप्त कर लेते हैं, जब भी जैसे प्रज्ञापराध पेशेंट के रुग्ण से होता है या जो हेतु सेवन अगेन किया जाता है, जिसके वजह से ये जो दोष है वो पुनः प्रकोपित हो जाते हैं एंड देन ज्वर निर्माण हैपेंस. सो इट इज द बेसिक संप्राप्ति ऑफ पुनरावर्तक ज्वर. सो एज वी ऑल नो, ज्वर इज कॉल्ड एज सर्वरोगाग्रज, आद्य रोग, जिसकी व्याख्या करते हुए हमारे संहिता में बताया गया है कि देह इंद्रिय मन संतापी सर्वरोगाग्रजो बलि. एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो देयर इज अ ज्वर. सो एवरी डिसीज का जो स्टार्टिंग है वो ज्वर से हुआ है, ऐसे आचार्यों का मानना है. तो इसलिए जो पुनरावर्तक ज्वर है, ये जो कंसेप्ट है इसका भी हम क्लिनिकली पिक्चर हमें कैसे दिखाई देता है. हर टाइम ज्वर का होना या हर टाइम ज्वर की जो हिस्ट्री पेशेंट बहुत बार बताते हैं, तो उसका विचार, वो हिस्ट्री का विचार अपने संप्राप्ति में कैसे लेना है वो हम आज देखने वाले हैं कि जो क्लिनिकली इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज द संप्राप्ति, एंड ये जो ज्वर है उसको चरकाचार्य ने मारक बताया हुआ है. दैट इज इट इज द फेटल, दिस कंडीशन कैन बी फेटल. सो ये जो संप्राप्ति है पुनरावर्तक ज्वर की, अगर वो बार बार होते हुए दिखती है और अगर ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है तो उसमें ये ज्वर मारक भी हो सकता है. चिरकाल परिक्लिष्टम दुर्बलम हित चेतसाम अचिरेणैव कालेन सहन्ति पुनरागता. पुनः पुनः आने से ये रुग्ण को मारक भी हो सकता है. एंड अभी आज की केसेस में बहुत से पेशेंट ऐसे दिखते हैं जो हमने सर के क्लिनिक में भी देखे हुए हैं कि जो जीर्ण संप्राप्ति होती है जिसमें ज्वर से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई होती है, और जैसे कैंसर जैसे भी गंभीर बीमारियां हैं उसमें भी पुनरावर्तक ज्वर की संप्राप्ति देखने के लिए मिलती है. तो उसका ये जो कंडीशंस है उसका हमारे संप्राप्ति में, पेशेंट के संप्राप्ति में कैसे विचार करना चाहिए या उसकी चिकित्सा में कैसे उसका यूज करना चाहिए, ये हम आज देखने वाले हैं. ऑल्सो जब भी अगर दोष बल उतना ज़्यादा नहीं है या पेशेंट का धातु बल अगर अच्छा है और बाकी की कंडीशंस अगर अच्छा है, तो वो ज्वर हर टाइम मारक नहीं होता है. तो फिर वो दोष जो है, जो धातुओं में बैठे हैं, लीन हो चुके हैं, तो उस दोषों से क्या होता है, क्या लक्षण दिखते हैं, तो उसमें भी
इतर व्याधि या कुछ लक्षण ऐसे चरकाचार्य ने बताए हुए हैं जिनमें है दीनता है, कंडू, कोट, शोथ, पीड़का, पांडुता, अग्निमांद्य, ग्लानि, अनन्य अभिलाषा, ऐसे कुछ जो सिम्टम्स है वो हमें बहुत से पेशेंट में दिखाई देते हैं, बट हम लोग वो पेशेंट को पुनरावर्तक ज्वर ऐसे नहीं देखते या वो एंगल से हम लोग उस संप्राप्ति का विचार नहीं करते हैं। बट अगर क्लिनिकली ये कुछ सिम्टम्स अगर हमें दिख रहे हैं या पेशेंट की हिस्ट्री में ऐसे कुछ सिम्टम या पुनरावर्तक ज्वर की हिस्ट्री है, तो उसमें भी अगर हम लोग पुनरावर्तक ज्वर का विचार करते हैं तो वो संप्राप्ति सॉल्व करने के लिए या चिकित्सा करने के लिए बहुत ईजी हमें हो सकता है। तो ज्वर की ये पुनरावर्तक ज्वर की जो चिकित्सा है उसमें चरकाचार्य ने बताया हुआ है, दैट इज मृदु भी शोधन शुद्धिर यापना बस्तयो हिता, दैट जो दोष है उनका शोधन नहीं हुआ है इसलिए वी आर गेटिंग पुनरावर्तक ज्वर। सो उनका शोधन अच्छे से होना चाहिए। बट यहाँ पे जो पंचकर्म बोला है, जो शोधन चिकित्सा बोली है, वो अपेक्षित नहीं है क्योंकि धातु बल और दोष बल उतना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे मृदु शोधन जो है, मृदु शोधन करना है जो निरंतर थोड़े दिन तक हमें करना है, जिसकी वजह से जो दोषों का अच्छे से शोधन होके जो पुनरावर्तन है वो हम रोक पाएंगे। उसी के साथ अगर बस्ती का यूज करना है तो यहाँ पे यापन बस्ती जैसे बस्तियां हैं जिनमें पेशेंट का जो धातु बल है वो कम ना करके हम पेशेंट का शोधन कर सकते हैं। तो इसमें मुस्तादी यापन जैसे बस्ती हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं ऐसे कंडीशंस में, और बाकी भी बस्तियां जो कल्पस्थान में हमें दिखाई देती है, वाघभट में दिखाई देती है, तो वो बस्तियों का भी अगर हम यूज यहाँ पे करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देती है। उसी के साथ हितश्च लघवो युषः जांगल अमिषजा रसा अभ्यंग उद्वर्तन स्नान धूपन अंजनानी च, ये जो सब चीजें हैं, अभ्यंग है, उद्वर्तन है, स्नान, धूपन, ये सब चीजें ज्वर चिकित्सा में भी बताई गई है। तो वहाँ के जो कल्प है या वहाँ के जो योग आए हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अंजन के बारे में कंडीशन में अंजन कैसे यूज हो सकता है, सो अंजन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन हितानी पुनरावृत्ते ज्वरे तिक्त घृतानी च, सो इसका आगे भी हम देखने वाले हैं कि तिक्त रस प्रधान द्रव्य से सिद्ध जो घृत है वो हमें ये कंडीशन में यूज करने के लिए बोला गया है। इसके जो कारण है, गुरु अभिषंधि असात्म्या नाम भोजनात् पुनरागते, इसी के वजह से उसकी जो चिकित्सा है वो हमें उसके विरुद्ध, दैट इज लघु उष्ण उपचारादि क्रमः कार्यश्च पूर्ववत, तो ऐसे हमें इसका चिकित्सा सूत्र जो है वो चरकाचार्य ने बताया है। तो अभी बहुत से योग ज्वर चिकित्सा में हर संहिता में आए हुए हैं, बट पुनरावर्तक ज्वर जिसको मारक तक कहा गया है, बट चरकाचार्य ने यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वाथ या एक ही योग हमें बताया है, दैट इज पुनरावर्तक ज्वरनाशक कषाय। इट कंटेन्स 5 मेडिसिन्स, बेसिक मेडिसिन, नॉट बेसिक बट जो हमें हर क्लिनिक में हमारे रहते ही है, जो ये किरात तिक्तकम तिक्ता मुस्तम परपटको अमृता ग्रंथि पितानी च अभ्यासात पुनरावर्तकम ज्वरम। सो ये जो योग दिया हुआ है यहाँ पे चरकाचार्य ने, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि जो पुनरावर्तक ज्वर जो मारक कहा गया है या इतना गंभीर कहा गया है, उसमें ये सिर्फ 5 द्रव्यों का यूज यहाँ पे हमें बताया है। इन 5 द्रव्यों का कषाय और उसी के साथ उसके अलग अलग कल्पनाएं हम क्लिनिक में बहुत कॉमनली यूज करते हैं, सर के क्लिनिक में भी, हमारे क्लिनिक में भी। तो उनका यूज युक्ति प्रमाण का वापर, यहाँ पे हमें युक्ति प्रमाण यूज करना है, और उसका यूज, ये द्रव्यों का यूज हम कैसे कर सकते हैं अलग अलग संप्राप्तियों का भंग करने के लिए, ये हम आगे अभी देखेंगे। सो इन शॉर्ट ये जो 5 द्रव्य है इनका ब्रीफ में हम देखेंगे कि जो जैसे मुस्ता और परपटक है, ऑल वी नो दैट मुस्ता परपटक ज्वरे, ऐसे अग्र संग्रह में भी चरकाचार्य ने बोला है कि हर टाइप के ज्वर में मुस्ता एंड परपटक इज यूजफुल। ऑल्सो किरात तिक्ता है, ये दोषों का शोधन करने के लिए जो है वो बहुत यूज होते हैं। दीपन पाचन हर द्रव्य यहाँ से करते हैं। लघु और रुक्ष मोस्ट ऑफ द द्रव्य है। तिक्त रस प्रधान द्रव्य है। कटु विपाकी एक्सेप्ट गुडुची एंड शीतवीर्य एक्सेप्ट गुडुची अगेन। सो यहाँ पे जो मुस्ता और गुडुची है इनका कार्य रसायन की तरफ ज्यादा है। जैसे ज्वर के रसायन जो है, जैसे ये पुनरावर्तक ज्वर जो है उसका पुनरागमन जो है तो वो रोकने के लिए, और धातुओं का जो बल यहाँ पे कम हुआ है
वो धातु बल बढ़ाने के लिए पेशेंट को ये जो मुस्ता और अमृता है, गुड़ुची है, इनका यूज यहाँ पे होता है। ऑल्सो जो ज्वर का वेग जो है, ये पुनरावर्तक ज्वर का जो बार बार वेग आ रहा है, वो वेग, उसका वेग भंग करने के लिए यहाँ पे किरात तिक्त, तिक्ता परपटक, इनका यूज होता है। सो किरात तिक्त को भी ज्वर का रसायन कहा गया है। बट अगेन ये जो द्रव्य है, इनका यूज पेशेंट में करते समय हमें दोष प्रधानता भी वहां पे देखनी है, क्योंकि ऑल दीज ड्रग्स आर लघु एंड रुक्ष, तिक्त, कटु, शीत। सो ये वातवर्धक भी हो सकते हैं अगर हम ज्यादा मात्रा में या ज्यादा टाइम तक यूज करें। तो पेशेंट में जैसे जो पुनरावर्तक ज्वर है, ये त्रिदोष है, वात पित्त कफ, एंड मानस दोष जो है इसमें जो रज और तम, तो ये दोष जो है इनका हमें स्थिति क्या है, कौन सा दोष प्रधान है और वात पित्त कफ की स्थिति क्या है, ये देख के ही युक्ति प्रमाण का यूज करके ही हमें इन द्रव्यों का यूज अपने प्रैक्टिस में करना है। सो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जिनमें हमने Dr. Tejas, yes, sorry to interrupt. We have got some feedback that if you could also, provide some updates in English, some of the participants would benefit from that. So, okay, okay. Thank you, ma'am. So these are some cases. So first case is 43 years old female. That patient came with the symptoms that she had Udgar Bahulya, that is burping, Adhman and Udar Gaurav, Mukhapak, that is frequently ulcers in the mouth, Daurbalya, Alasya, Ubhay Hasta Chimchiman, that is numbness in bilateral arms, then Karnanad, Karnakandu, Karnashul, प्रपाद शोथ, दैट इज ऑन एंड ऑफ, इफ आफ्टर एक्सर्शन एंड अगर वो बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम के लिए खड़े रह के काम करते हैं तो उनको प्रपाद शोध ये लक्षण दिखाई देता है। ऑल्सो सर्वांग शोथ एंड अंगमर्द, संधिशूल, दैट इज सर्वांग संधिशूल, उदर्द, कंडू, भ्रम, शिरोगौरव, भ्रूषक शौतु, दैट इज स्नीजिंग एपिसोड्स। after getting up in the morning, she gets the sneezing episodes, like 8 to 9 sneezes in one episode, and such 3 to 4 episodes each morning she had. Also Akshikut Karshne is there. Kshudha was aniyamit, that is irregular of that patient. Mal was aniyamit and asamadhan karak, that is 2 to 3 times per day, but that was also not satisfactory. Then Mutra was Visragandhi and Sadaha, and 2 to 3 times only per day. Then Nidra was disturbed and not satisfactory. Also, her menstrual history was regular, but she got the clots in the menstrual flow. Also, before menses, she got the ज्वरवत, that is ज्वर के जो symptoms है, अंगमर्द है, सर्वांग शूल है, देन ज्वर के जो संधिशूल है, ज्वर का जो लक्षण बताए गए हैं वो सब लक्षण उन्हें दिस प्रीवियस मेंस्ट्रुअल का जो मेंस्ट्रुअल के पहले जो है वे सिम्टम दिखाई देते थे। देन मानस लक्षण में क्रोध, दैट इज बहुत चिड़चिड़ापन उनका बढ़ा हुआ था, एंड उत्साह हानि। सो दीज आर द लक्षण्स। देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री एंड पूर्व व्याधि इतिहास, दैट इज previous health history जो उनका था, that she was infected by chikungunya 4 years before, and after that only these symptoms were started to aggravate. Then also dengue fever was there 3 years before. So after these episodes of fever, she got many symptoms which we just saw. Then हेतु जो है उनके, that was विदाही and रुक्ष अन्नपान, तिक्त रसात्मक आहार. Her occupation was, she was a jewelry maker, and she lives in the Baramati, that is Pune region, in the village of Baramati. So there she used to sit in the front of the jewelers, and जो वहाँ पे ज्वेलरी बनाते हैं वहाँ पे वो काम करते थे. तो that was the work hours are not definite, so she was working from morning 11 to 8 or 9 at the night. So जो उनका कहना था कि वो ऑक्यूपेशनली इतने बिजी थे कि वो वहाँ से मूव नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो दिन भर वहाँ पे बैठेंगे तो बैठे रहेंगे, बिकॉज
she had the responsibility of the jewelry of the person customers. So वो वहाँ पे जो थे वहाँ पे बैठते थे और खाने पीने का कुछ भी उनका फिक्स ऐसे टाइम टेबल नहीं था. So she used to have vada pav or she used to have bhel or pani puri meanwhile जब भी कस्टमर नहीं थे. And also with vada pav she loves green chili, so she daily had green chili with that vada pav only, and that was her lunch only, that too any time in the day विदाउट नोइंग कि उनका एपेटाइट क्या है, वो टाइम उन्हें भूख लगी है नहीं लगी है, बट टाइम मिले तो वो खा लेते थे. ऑल्सो वेग धारण वॉज देयर, क्योंकि सेम बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन वो वहाँ से छोड़ के जा नहीं पाते थे, इसलिए मूत्र वेग धारण, क्षुधा वेग धारण, तृष्णा वेग धारण, ये बहुत से वेग धारण भी उनमें दिखाई दिए थे. सो उनका जो संप्राप्ति है, तो वो संप्राप्ति ऐसे किया था कि ज्वर जो उन्हें आया था, दैट चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर, उसके बाद दोषों का संशोधन अच्छे से हुआ नहीं था. दैट दोष गॉट अक्यूमुलेटेड इन द धातु, एंड उसके बाद ये जो हेतु सेवन थे उनके, उसके वजह से वो बार बार दोष प्रकोपित होके उनको ये लक्षण दिखाई दे रहे थे. सो जो यहाँ पे संप्राप्ति का विचार करके चिकित्सा वॉज प्लान. सो फर्स्ट टाइम उन्हें 10 days के लिए आई हैव गिवन दी पीजे क्वाथ, दैट इज पुनरावर्तक ज्वर का क्वाथ, एंड विथ खड़ी शक्कर मिश्री. ऑल्सो फॉर मृदुरेचन आई हैड यूज दी अविपत्तिकर चूर्ण विथ यष्टि, दैट इज यष्टि मधु, एंड त्रिवृत्त विथ ब्लैक रेजिन्स एट द नाइट. सो ये जो योग है अविपत्तिकर, यष्टि, त्रिवृत्त एंड ब्लैक रेजिन्स, ये हम क्लिनिक में बहुत यूज करते हैं सर के पास भी, जिसकी वजह से जो शोधन जो है वो वात प्रकोप नहीं करता है, एंड मृदु शोधन बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. तो ये जो मेन ड्रग्स थे वो उनको दिए थे. आफ्टर 10 days she came for the follow up, and she had many symptoms जो कम हुए थे, जैसे शिरोगौरव है, भ्रम, भ्रूषक शौथु, that is sneezing episodes were not there, then मल also satisfactory, then उदर गौरव was not there, मुख दाह, मुख पाक was not there, प्रपाद शोथ was not there, उद्गार बाहुल्य was not there, then also उदर उरो गौरव was not there, शिरो गौरव was not there. Only she had सर्वांग मर्द एंड सर्वांग संधि शू. शुद्धा भी उन्हें लगना स्टार्ट हुई थी. देन निद्रा वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब थी, बट पहले से थोड़ा बेटर था, ऐसे उनका कहना था. सो उसके बाद अगेन जो पीजे क्वाथ है, इसका क्षीरपाक उन्हें दिया था फॉर 15 days, एंड उनके जो दवाइयाँ थी बाकी, उसमें एक योग ऐड किया था, दैट इज रक्तपाचक, सुवर्ण सुचशेखर, नॉर्मल सुचशेखर, केशोर गुग्गुल विथ अमृतारिष्ट. सो ये उनको व्यान उदान काल में चालू किया था, एंड मृदुरेचन वॉज देयर कॉन्स्टेंटली. सो ये चालू किया था. उसके बाद अगेन आफ्टर 15 days उनके बहुत से सिम्टम 70% तक कम हुए थे. सो पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी. उसके बाद उन्हें बहुत दिन तक बाकी की चिकित्सा जो है वो चालू रखी थी, एंड अभी जो है पेशेंट मेडिसिन पे नहीं है, पेशेंट के मेडिसिन ख़त्म हो चुके हैं, पेशेंट को अच्छे से रिलीफ मिला है, एंड उनके जो बाकी छोटे मोटे लक्षण थे, दैट इज केशकालित्य, दारुण, मुख पीटिका, ये भी उनके बहुत से लक्षण कम हुए थे जो उन्होंने कभी रिकॉग्नाइज भी किए नहीं थे, बट ये मेडिसिन के बाद और ट्रीटमेंट के बाद उनके वो लक्षण कम हुए थे. सो इन दिस कंडीशन we thought about the पुनरावर्तक ज्वर, and this पुनरावर्तक ज्वर का जो क्वाथ है, this is used as दीपन पाचन, and also afterwards it is used in the form of शीरपाक, and then I have used it in the form of घृत also. So पुनरावर्तक ज्वर के जो कंटेंट है उनका जो काढ़ा है, उसी का घृत फॉर्म करके हमने उनको रसायन करके यूज किया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा रिलीफ मिला, एंड पेशेंट गॉट द उपशय. Then this is the next case. This is also 38-year-old female patient. She got the symptoms of aniyamit raja pravartan since 2020 after COVID. So she got the COVID in the second wave, but patient was not admitted. Only some symptoms are there. Jwar was there, but patient was not diagnosed as COVID patient. So
उसके बाद उन्हें ये जो अनियमित रज प्रवर्तन है ये चालू हुआ था. देन शी हैड द सिम्टम ऑफ ग्रथिल रज प्रवर्तन एंड कृष्णवर्णी रज प्रवर्तन. ऑल्सो बिफोर मेंसेस शी यूज टू गेट शोथ, दैट इज ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग उनको रहता था. ऑल्सो शी यूज टू गेट अंतर्वेगी ज्वर बिफोर मेंसेस. सो बाकी टाइम भी उनको रहता था. व्हेन बहुत टायर्ड होते थे या बहुत एक्सर्शन होता था, वो टाइम अगेन शी गॉट द सिम्टम्स ऑफ ज्वर. और बिफोर मेंसेस तो उनको ज्वर के जो लक्षण है वो दिखाई ही देते थे. ऑल्सो रौक्ष जो है, केश रौक्ष है या त्वचा रौक्ष है, वो भी उन्हें दिखाई दे रहा था. शुदा वॉज ओके अकॉर्डिंग टू पेशेंट. मल इज 1 per day and that is satisfactory. Sometimes it is grathil ya sapravahan. Then mutra 5 to 6 times per day and that is okay. सम्यक. निद्रा was सम्यक. So पेशेंट का पूर्व व्याधि इतिहास में कोविड बट अनडायग्नोज्ड कोविड के सिम्टम्स थे. देन डेंगू इन 2023 था. सो उसके बाद भी उनके बहुत से लक्षण जो है वो एग्रीवेट हो गए थे. उनके जो हेतु थे उसमें एक मेन हेतु था, दैट इज भोजनोत्तर व्यायाम. So she was the security guard in Navi Mumbai Metro. So she has the shift duties, that is 8 to 2 morning duty and 2 to 10 evening shift. So according to her shift, her timetable was according to her shift. So उनको ऐसे हुआ था कि after COVID she get the health conscious behavior उनका ज़्यादा बढ़ गया था. इसकी वजह से उन्होंने जिम स्टार्ट किया था एंड वो बहुत रिलीजियसली वो जिम को फॉलो कर रहे थे. तो उनका ऐसे था, जब भी मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी तो वो टाइम वो मॉर्निंग में जिम नहीं जा सकते थे. सो वो टाइम पे वो रात को जिम में जाते थे आफ्टर डिनर, या फिर शाम को घर पे आके कुछ नाश्ता करके उसके बाद जिम को जाते थे 1 to 1.5 आवर के लिए. सो दिस इज द भोजनोत्तर व्यायाम जो है, इट कॉजेस आर्म एंड ऑल्सो जो ज्वर का जो उनके दोष थे जो धातुओं में लीन हुए हैं उनको वो प्रकोपित करने के लिए ये एक कारण था. देन अभिषंधि एंड विदाही आहार, दैट इज वीकली 2 to 3 टाइम्स वो लस्सी जो है ग्लास भर के लस्सी पिया करते थे. देन ऑल्सो पनीर चीज इसका सेवन रहता था. विदाही आहार, दैट इज अगेन वड़ा पाव, देन भजी पाव ऑन दी फील्ड वर्क. She used to have the vada pav and bhaji pav. Also a lot of tea. Then शुष्क आहार, अगेन दिस इज बेकरी के जो प्रोडक्ट्स है वो भी वहाँ पे काम पे रहते तो बिस्किट खा लिया, या फिर भूख लगी है बट लंच के लिए टाइम नहीं है तो कुछ तो भेल वड़ा पाव खा लिया, ऐसे उनका आहार रहता था. तो उसकी वजह से उनकी जो ये संप्राप्ति है उसका विचार जो हमने किया था, दैट इज अगेन विषमासन एंड भोजनोत्तर व्यायाम. इसकी वजह से जो बढ़ा हुआ आम है एंड ज्वर का संशोधन न हुआ है, उसकी वजह से जो बढ़े हुए दोष है उसकी वजह से उनका अग्निमांद्य ज्वर होके उन्हें पुनरावर्तक ज्वर एंड ये बाकी सिम्टम आगे दिखाई दे रहे थे. तो उनका पेशेंट का एक कहना था कि फ्रॉम 2020 मुझे ऐसे वेलबींग का फीलिंग नहीं आ रहा है, दैट इज कुछ ना कुछ मेरा हर रोज चालू ही रहता है कंप्लेन एंड मैं हेल्दी हूँ ऐसे लगता ही नहीं है मुझे, और मुझे क्या हुआ है ये मुझे पता नहीं चल रहा है बिकॉज ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल. और जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो पेशेंट को मतलब डॉक्टर कुछ कैल्शियम या मल्टीविटामिन दे देते हैं या फिर पेन किलर देते हैं और उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो वेलबींग का फीलिंग है वो मुझे नहीं आ रहा है. तो ये पेशेंट को चिकित्सा देते समय again we used PJ Quath, that is पुनरावर्तक ज्वर क्वाथ with खड़ी शक्कर for 10 days and this योग, that is रक्तपाचक धमासा यष्टि नलद, that is वाड़ा एंड चंद्रप्रभा अपाने, that is before mill with दशमूलारिष्ट, ये उनको दिया था. तो रक्तपाचक इज अगेन पाचक, जो धातु पाचक बोले हैं चरक चिकित्सा 3 में, मतलब ज्वर चिकित्सा में विषम ज्वर में जो पाचक बोले हैं, तो वो धातुकता अवस्था जो है दोषों की, तो कौन से धातुओं में वो दोष अभी लीन है या कौन से धातुओं में वो संप्राप्ति हो रही है, उसका विचार करके अगर हम ये पाचक यूज करते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. सो पीजे क्वाथ एंड रक्त पाचक यहाँ पे मेनली यूज किए गए थे. तो आफ्टर 10 डेज जो उनका ये था फॉलो, तो उसमें पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी. शी सेड कि फर्स्ट टाइम मुझे 5 साल में ऐसे लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ, दैट वॉज हर रिप्लाई.
सो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड उन्होंने तो ऐसे, वो सिर्फ मुझे मिलने के लिए आए थे कि मैं तो अभी ठीक हो गई, अभी तो दवाई क्यों लेनी है, ऐसे। तो उनका ऐसे था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। फिर उनको मैंने समझाया, और जो इरेगुलर मेंसेस है, बाकी की जो चीज़ें हैं, उसके लिए मेडिसिन अगेन कंटिन्यू करी है। सो पेशेंट इज़ ऑन ट्रीटमेंट नाउ ऑल्सो, एंड अभी उनका सेकेंड या थर्ड फॉलोअप आएगा। बट पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी, एंड बहुत से सिम्टम जो है पेशेंट के, हाँ, वन मोर, पेशेंट का जो पीरियड है वो 2 to 3 मंथ से मिसिंग था, एंड आफ्टर स्टार्टिंग अवर मेडिसिन she got the period on the very 4th day and also without any pain, कष्टार्तव के बिना, और फ्लो भी बहुत अच्छे से साफ उनको आया था। इसके वजह से पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी कि विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट एनी ट्रीटमेंट आई गॉट पीरियड नेचुरली। सो विथ पीरियड जो आया था वो भी विदाउट एनी पेन एंड विदाउट एनी सिम्टम्स आया था, इसलिए पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। सो अभी पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू है। Then this is the case number 3 again, 32-year-old female. उनका जो सिम्टम था दैट इज सर्वांग मर्द एंड शूल, अंग गौरव। देन प्रातः संधिग्रह, सुबह उठने के बाद शी यूज टू गेट दी स्टिफनेस इन हर जॉइंट्स। देन आनंद शोथ, दैट इज स्वेलिंग ऑन द फेस। हस्त पादतल दाह, अंतरदाह, रोक्ष, स्किन में या फिर केश में, नख, दंत, इसमें भी बहुत रोक्ष उन्हें पता चल रहा था। केश खालित्य वॉज देयर, दारुणक वॉज देयर। रजक्षय, दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो जो था दैट इज ओनली 1 or 2 days ओनली, एंड दैट टू विथ पेन। ऑल्सो विदाह एंड अम्लक वॉज देयर, दौर्बल्य एंड आलस्य वॉज देयर। दिस पेशेंट जो है उनका पूर्व व्याधि इतिहास, पेशेंट ये जो है मेरी बहुत पहले की पेशेंट थी, स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में पेशेंट ये आई थी। सो शी हैड द डेंगू फीवर इन 2009, ऑल्सो शी वॉज नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड ऑन RX फॉर सेम। देन शी हैड द मलेरिया इन सूतिकावस्था, दैट इज पोस्टपार्टम पीरियड, एंड चिकन पॉक्स इन 2070। सो ये मेन फीवर थे, बट उनका ऐसे कहना था कि इन ऋतु संधि काल और जब भी कुछ अलग से मैं बाहर घूमने जाती हूँ या कुछ अलग होता है तो देयर इज वायरल फीवर। सो हमेशा उन्हें फीवर आता है, एंड उन्हें वो एंटीपायरेटिक्स जो है वो लेने ही पड़ते हैं। तो साल में 2 to 3 times शी यूज टू गेट द वायरल फीवर एपिसोड। सो एंड ऑक्यूपेशनली शी वॉज टीचर, तो उसके अकॉर्डिंगली भी उनका जॉब प्रोफेशन जो था उसके अकॉर्डिंगली भी उनका हेतु थे। तो हेतु में मेनली दीवा स्वाप, दैट इज सुबह 7 to 2 उनका वर्किंग आवर था। सो दोपहर को आने के बाद खाना खा के तुरंत वो 2 घंटे के लिए सो जाते थे। सो दैट इज दी दीवा स्वाप हेतु। देन विरुडक सेवन, जो ये है अपना स्प्राउट्स है, वो उनमें बहुत ज़्यादा था। शी वॉज प्योर वेजिटेरियन, सो बिकॉज ऑफ दी प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, और मुझे एनर्जी की ज़रूरत रहती है क्योंकि बहुत वीकनेस बार बार लगता है, इसलिए वो मॉर्निंग टाइम में सलाड के फॉर्म में जो मूंग है या स्प्राउट्स है, मिक्स स्प्राउट्स, इनका सेवन बहुत ज़्यादा करते थे। देन अभिसंधि आहार, अगेन देर इज पनीर का सेवन था। नॉर्थ इंडियन शी वॉज, सो पनीर यूजुअली उनके खाने में रहता था। देन दही भी बहुत ज़्यादा वो खाते थे। अम्ल रस प्रीति उनमें थी, पहले से ही अम्ल रस प्रधान उनका खाना, तो हर चीज़ में नींबू ऊपर से लेना है, या बीच बीच में इमली खाना जो है, या फिर अचार, हर खाने में अचार उनको चाहिए। सो ये अम्ल रस का जो है वो भी उनका सेवन बहुत ज़्यादा था। एंड अत्यंबु पान, दैट इज बहुत ज़्यादा वो पानी पीते थे। सो यूजुअली 3 to 4 liters पर डे, विदाउट इवन सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, विदाउट जो तृष्णा का वेग है, विदाउट वेग वो ये पानी पिया करते थे टू कंप्लीट दैट टारगेट ऑफ 3 to 4 liters। सो ये सब मेन हेतु उनमें मिले थे। तो उनकी जो है चिकित्सा में उनका जो संप्राप्ति है, अगेन ज्वर जो है बार बार आ रहा है, ज्वर, उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है एंड हेतु सेवन हो रहा है, so उसकी वजह से शोथ जो है या कफ पित्त विकृति है, ग्रह जो है वो उनमें दिखाई दे रहा है। तो उसको ट्रीट करने के लिए अगेन यहाँ पे पुनरावर्तक ज्वर, काथ विथ लघु पंचमोर यूज किया था। एंड रजनी योग, जो उनको चिकन पॉक्स की जो हिस्ट्री थी, तो पांचभौतिक चिकित्सा जो आया है दातार शास्त्री का, वहाँ पे उन्होंने रजनी योग, ये एक योग दिया है जिसमें रजनी दैट इज हल्दी
टर्मरिक एंड गैरिक, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अगर हमें हिस्ट्री मिलती है चिकन पॉक्स की रिसेंट में तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो रजनी योग एंड मृदुरेचन अगेन अविपत्तिकर, त्रिवृत्त एंड यष्टि काले मनुके के फांट के साथ उन्हें रात को दिया था। तो उसके बाद पेशेंट का जो फॉलोअप था वो बहुत अच्छा था उनका। उसी के बाद जस्ट शी गॉट द पीरियड एंड पीरियड में उनका फ्लो अच्छे से हुआ था। ऑल्सो उनका जो सर्वांग मर्द एंड सर्वांग शूल था, सर्वांग गौरव एंड जो हस्तपादतल दाह था वो अच्छे से कम हुआ था। अंतरदाह का जो फीलिंग था तो वो ये मेंस्ट्रुअल के टाइम उनको नहीं फील हुआ था। तो प्रातः ग्रह जो था उनका, दैट इज बॉडी स्टिफनेस इन द मॉर्निंग, वो भी 50 to 60% तक उनका कम हुआ था विद इन 10 days। सो ये यूज़ करने पे उनका पाचन जो है दोषों का वो अच्छे से हुआ था, इसलिए बहुत से सिम्टम उनके कम आए थे। उसके बाद भी पेशेंट ने बहुत टाइम तक हमारे साथ ट्रीटमेंट लिया। बाद में उनमें यापन बस्ती का भी यूज़ हमने किया था बिकॉज शी वॉन्ट टू कंसीव फॉर द सेकेंड टाइम। सो उसके लिए शोधन उनका किया था और उसके बाद उनको यापन बस्ती भी दिया था। एंड पेशेंट अभी बहुत अच्छे से है, उनका डिलीवरी भी हुआ है एंड उनका सूतिका अवस्था में या फिर प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी अदर सिम्टम्स उनको नहीं दिखा था। सो दीज आर दी केसेस। इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं जो हमने सर के यहाँ पे भी देखे हैं या फिर अपने क्लिनिक में भी देखते हैं। बट ये जो केसेस आते हैं उनमें कैसे विचार करना है ये पुनरावर्तक ज्वर का, तो मेनली पुनरावर्तक ज्वर क्या करता है। सो जैसे बोला है कि पुनरावर्तक ज्वर जो है इस कंडीशन में जो दोष है वो धातुगत अवस्था में जाते हैं। तो वो धातुगत अवस्था में जब भी जाते हैं तो वो वहाँ पे धातुओं का परिपाक करना चालू करते हैं। दैट इज द धातुपाक कंडीशन विच इज एक्सप्लेन इन द माधव निदान अगेन इन ज्वर अध्याय। निद्रा नाशो हृदय स्तंभो विष्टंभो गौरव अरुचि अरति बल हानिश्च धातुनाम पाक लक्षणम। सो ये जो सिम्टम्स है वी गेट इट इन द पेशेंट यूजुअली, बट ये हम पुनरावर्तक ज्वर या धातुपाक के लक्षण ऐसे सोचते नहीं है बहुत बार। बट अगर हम वो एंगल से सोचते हैं और धातुपाक का कारण अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत बार पुनरावर्तक ये जो ज्वर है वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि जहाँ पे भी पाक हो रहा है तो वहाँ पे ऊष्मा या जो पित्त है वो प्रधान है वहाँ पे, और ज्वर में जो है वो पित्त दोष प्रधान कहा गया है। इसलिए ज्वर की वजह से जो धातुगत ज्वर है उसकी वजह से धातु पाक होता है। अभी धातु पाक जो है वो कौन से धातु में पाक हो रहा है ये कैसे देखेंगे। सो वी हैव धातु सारता के लक्षण जो है हमारे पास है। देन धातुओं का जो कर्म है तो वो अगर हैम्पर हो रहा है पेशेंट में, जैसे रक्त का कार्य है जीवन या मांस का कार्य है लेपन, मेद का कार्य है स्नेहन, जो ऐसे कार्य बोले हैं वो अगर पेशेंट में हमें हैम्पर हुए दिखाई दे रहे हैं तो, और जो धातु सारता के जो स्थान बताए गए हैं तो वो स्थान में अगर हमें विकृति दिख रही है तो उसमें धातु पाक जो है वहाँ पे हो रहा है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो वो धातु में पाक हो रहा है ये सोच के उसमें पुनरावर्तक ज्वर की हिस्ट्री है या वैसे संप्राप्ति है क्या, वो देख के अगर हम वहाँ पे ये सोच विचार करके संप्राप्ति लगाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हम पेशेंट को दे पाते हैं। तो पुनरावर्तक ज्वर जो हमने देखा था कि मारक भी हो सकता है, दैट इट कुड बी फेटल। सो वो कहाँ पे हमें ऐसे कंडीशन दिखते हैं, that is many conditions in cancerous conditions, in kidney disorders, in gynecological, digestive या cardiovascular diseases में पुनरावर्तक ज्वर की हिस्ट्री हमें मिलती है। also in many diabetic patients, also after TB patients में जो complications होते हैं या after TB अगर फुल्ली ट्रीटमेंट ले चुके हैं पेशेंट, उसके बाद भी बहुत बार पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं जो अभी हमें देखने मिलते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो बहुत कम एज में पेशेंट में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें भी बहुत से बार पुनरावर्तक ज्वर ये कारण मिलता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल पेशेंट्स में ये हिस्ट्री मिलती है कि बहुत बार एंटीपायरेटिक मेडिसिन है या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, ये ओवरडोज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट लेते हैं, जिसमें जो वो ज्वर है, जो दोष बढ़े हुए हैं, उनका पाचन या शोधन अच्छे से नहीं होता है, बट हम वो दोष जो है वो सप्रेस किए जाते हैं एंड वो धातुगतावस्था में लीन हो जाते हैं। एंड देन अगर ये चिरकाल तक, दैट इज क्रॉनिक स्टेज अगर ये प्राप्त करता है पुनरावर्तक ज्वर, देन वी विल गेट दी गंभीर संप्राप्ति लाइक कैंसर और किडनी डिसऑर्डर्स एंड ऑल। सो ये हम
एकदम ब्रीफ में देखेंगे कि ऐसे कंडीशंस में पुनरावर्तक ज्वर की संप्राप्ति हम कैसे वहां पे सोच सकते हैं। फर्स्ट इज रीनल डिसीजेस। सो वृक्क की उत्पत्ति, दैट इज किडनी की जो उत्पत्ति है वो बताई गई है, दैट इज रक्त मेद प्रसादात वृक्को। रक्त धातु एंड मेद धातु का जो प्रसाद भाग है उससे वृक्क की उत्पत्ति बताई गई है। जब भी धातु पाक अवस्था चिरकाल रहती है तो रस रक्त विदग्धता एंड देन मेद तक जब संप्राप्ति जाती है तो मेद का जो कार्य है स्नेहन वो वहां पे हैम्पर होता है, एंड जो वृक्क का प्रसादन है वो वहाँ पे हैम्पर होता है, एंड वी गेट मेनी रीनल डिसीजेस, क्रॉनिक रीनल फेलियर्स जो है, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। सो इसमें जो है जो पुनरावर्तक ज्वर का क्वाथ है उसका हम युक्ति प्रमाण से यूज करेंगे तो उसकी जो घृत कल्पना है, सिद्ध घृत ऑफ पुनरावर्तक ज्वर कषाय अगर हम यूज करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो पेशेंट डायलिसिस पे है उनमें भी हम सर के क्लिनिक में ये यूज करते हैं, and patient gets very good result in the renal diseases also. Then digestive system diseases we called is a grahani. So mostly ज्वर is a आमाशयगत संप्राप्ति, बट जब क्रोनिक हो जाता है, पुनरावर्तक ज्वर बार बार आने लगता है तो दोषों का स्थान संश्रय अगर पक्वाशय में होता है तो वहाँ पे हमें ज्वर, देन उससे रक्त पित्त एंड उससे वातज या पित्तज ग्रहणी जैसे सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। मेनी पेशेंट्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो उनमें पुनरावर्तक ज्वर की संप्राप्ति हमें दिखाई देती है। तो इसमें भी अगेन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इफ वी यूज घृत कल्पना और आसवरिष्ठ कल्पना, देन इट गिव्स वेरी नाइस रिजल्ट्स इन द पेशेंट। In gynecological diseases, so इन बीइंग अ फीमेल प्रैक्टिशनर मेरे पास बहुत से अभी भी जो पेशेंट हमने केसेस देखे हैं तो गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस में पुनरावर्तक ज्वर इज वेरी कॉमन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ श्वेत प्रदर, देन पांडु, देन रक्त प्रदर, fibroids, adenomas, then PCOD also, in infertility also there is the संप्राप्ति of पुनरावर्तक ज्वर। सो रस एंड रक्त की जो विदग्धता है तो ये दोष जो बढ़े हुए हैं बॉडी में, जो धातुगत अवस्था उन्हें मिली है उसकी वजह से रस रक्त विदग्धता होती है। देन अगेन देर इज अम्ल पित्त एंड इट मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स रक्त पित्त, एंड देन वी सी द फाइब्रॉइड्स और डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ऑल्सो रस के जो उपधातु है दैट इज स्तन्य एंड आर्तव, इसमें भी अगर रस दुष्टि है, रस धातु का पाक हो रहा है तो उसमें भी हमें वो दुष्टि दिखाई देती है, आर्तव दुष्टि एंड स्तन्य दुष्टि दिखाई देती है। एंड अगेन मेनी गायनेकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ऐसे पेशेंट में अगर हम घृत कल्पना इसकी यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम इसमें मिलता है हमें। ऑल्सो पीसीओडी के केसेस में भी अगर पुनरावर्तक ज्वर की संप्राप्ति है तो उसमें पुनरावर्तक ज्वर का जो काढ़ा है उसका अगर हम कषाय असवरिष्ठ बनाते हैं तो उसका भी यूज बहुत अच्छा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। देन इन कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, सो अगेन रस का आश्रय हृदय कहा गया है। सो रस धातु जो मेन ज्वर में इन्वॉल्व है उसमें रस रक्त में विदग्धता बिकॉज ऑफ पुनरावर्तक ज्वर आती है। इट टेंड्स टू दी अम्ल पित्त एंड देन रक्त पित्त। सो ऐसी संप्राप्ति यहाँ पे अगर इसमें चिंता ये फैक्टर रहता है, दैट इज अगेन रसदुष्टि हेतु चिंता नाम च अतिचिंतनात्, ये जो बोला है, जर स्ट्रेस फैक्टर अगर ज्यादा है पेशेंट में तो उसमें भी हमें हाइपरटेंशन जो है वो दिखाई देता है। ब्लॉकेजेस जैसे जो संप्राप्ति है, हृदरोग जो है वो हमें दिखाई देता है। तो उसमें भी हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स है उसमें पुनरावर्तक ज्वर का अगर घृत यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देता है। जैसे कि बहुत से पेशेंट्स में अभी जो आईटी प्रोफेशनल्स है या बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जिनका है तो बहुत से अभी 30 या 40s में ही हमें हाइपरटेंशन दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पुनरावर्तक ज्वर है इसका अगर विचार हम वहाँ पे करेंगे और उसका अगर यूज हम लोग वहाँ पे करेंगे तो वो संप्राप्ति सॉल्व करने के लिए या जो धातु पाक है वो वहाँ पे रोकने के लिए हम बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। देन इन कैंसर, when संप्राप्ति goes deep in the all the धातुस, that is till अस्थि एंड शुक्र, अस्थि मज्जा शुक्रगत संप्राप्ति जब भी जाती है तो वहाँ पे शुक्रगत वात या अस्थि मज्जागत जो धातु पाक है उसके लक्षण हम कैंसर में दिखाई देते हैं। तो
तो धातु पाक बहुत क्रॉनिकली अगर वहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे कैंसर जैसे संप्राप्ति दिखाई देती है, जिसमें ओजक क्षय के लक्षण भी यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो कैंसर के भी बहुत से पेशेंट्स में सर के क्लिनिक में भी घृतकल्पना अगेन एंड अरिष्टकल्पना का यूज हम लोग करते हैं। अवलेह का भी यूज वहाँ पे किया हुआ है। सो कैंसर के भी पेशेंट्स में अगर हम पुनरावर्तक ज्वर का विचार करते हैं संप्राप्ति में एंड वो मेडिसिन यूज करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छे से हम उसमें रिजल्ट दे सकते हैं। सो ओवरऑल ये पुनरावर्तक ज्वर का जो योग है तो अगर वो दिखने में भी सिंपल दिख रहा है या फिर बेसिक मेडिसिन उसमें दिख रहे हैं, बट जो चरकाचार्य ने विचार करके वो मेडिसिन का योग वहाँ पे बताया है इतनी गंभीर संप्राप्ति में, तो उसका यूज अगर हम लोग वैसे करेंगे युक्ति प्रमाण का यूज अपने करके तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें प्रैक्टिस में देते हैं। पुनरावर्तक ज्वर ये सिर्फ जो बुक वाला पिक्चर है कि हमेशा ज्वर आ रहा है वैसे ही सिर्फ देखना नहीं चाहिए। अगर हम लोग इस एंगल से भी वो पुनरावर्तक ज्वर का विचार करेंगे अपने डे टू डे प्रैक्टिस में तो वो हमें बहुत बेनिफिट देगा एंड पेशेंट को भी बेनिफिट देगा। मोस्टली जो नए प्रैक्टिशनर्स है, जो स्टूडेंट्स है, बहुत बार स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में ऐसे होता है कि पेशेंट सिम्टम लेके आते हैं, बट बहुत बार दीपन पाचन करने के लिए क्या देना है पेशेंट को ये हमें वो टाइम पे याद नहीं आता है, या फिर बहुत से मेडिसिन जो है वो क्लिनिक में अवेलेबल नहीं रहते हैं। बट ये जो बेसिक योग है, जो ये द्रव्य है, ये तो हर क्लिनिक में रहते ही है। जो रसौषधि है बहुत बार पेशेंट का भी उतना खर्चा करने का पोटेंशियल नहीं रहता है, या अपने पास भी अगर रसौषधि अवेलेबल नहीं है तो वैसे कंडीशन में भी अगर हम लोग ये पुनरावर्तक ज्वर का योग अलग अलग कल्पनाओं का यूज करके विचार करके अगर यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो पुनरावर्तक ज्वर का क्वाथ है, शीरपाक है, जो चूर्ण है हम क्लिनिक में यूज करते हैं, तो जो ये चूर्ण का योग है उसको उसी के काढ़े की 7 भावनाएं देके हमने एक चूर्ण का योग बनाया है। तो ये चूर्ण भी पेशेंट में सर भी यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं। तो ये पेशेंट के योग में हम यूज कर सकते हैं। बहुत से क्रॉनिक पेशेंट्स में सर ये जो चूर्ण है उसका वर्धमान मात्रा में भी यूज किया हुआ है, तो वो भी रसायन चूर्ण जैसे एक्ट करता है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट में हमें दिखाई देता है। ऑल्सो आसवरिष्ठ कल्पना भी इसके बना के रख सकते हैं हम लोग, अवलेह भी यूज कर सकते हैं एंड ऑफकोर्स घृत। सो अगर अनेक ये कल्पनाएं अगर ये हम पुनरावर्तक ज्वर के यूज करेंगे पेशेंट में तो बहुत से जो संप्राप्ति है, जो धातु पाक अवस्था है, वो वहाँ पे ही हम रोक सकते हैं पेशेंट की। और जो आगे पेशेंट डिटोरिएट होने वाला है, वो पेशेंट का जो कंडीशन आगे सीरियस होने वाला है वो हम वहीं पे रोक के धातुओं का बल बढ़ा के पेशेंट को कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द पुनरावर्तक ज्वर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो किसी को कुछ डाउट रहे सो वी कैन मूव फर्दर फॉर द डाउट सेशन। Yeah, thanks a lot, Dr. Tejashri, for that insightful and enriching presentation. Okay, thanks a lot again. Your expertise and knowledge have helped us with a deeper understanding on how the Punaravartak Jwar, its application in clinical practice, can be helpful to all the doctors present here. So before we conclude, I would like to open the floor for any questions. Please feel free to raise your hand or type your question in the chat box, and Dr. Tejashri will address them. The Q&A shall be hosted and managed by Dr. Snehil Makwana. Dr. Snehil, are you there? Yes, Anand. Okay. Very nice correlation, Tejasri. You have given a good insight on Punaravartak Jwar. One. Second, the hetus you put out, like doing gym at the night, which is very common, drinking water without thirst, or eating food without feeling hungry, are the commonest things. And people feel these are the healthy habits which are going on, like even eating sprouts, which according to Ayurveda, we advocate that it is not healthy for regular usage, but usage of curd, usage of sprouted food, and doing gymming at night is very common in the patients. And you put it out very well in the hetus. First question is from the Dr. Ahmed Savani. What is the rationale of using
काले मनुके, black raisin kismis, instead of indigenous manuka, brown reddish one with the seeds. So instead Okay. of brown, why you are using black? ब्लैक में जो है ना, जो रेचन कार्य है ना, वो बहुत अच्छे से मिलता है। दोनों का यूज कर सकते हैं, बट ब्लैक रेजिन से जो है ना, वो रेचन कार्य बहुत अच्छे से दिखाई दिया है पेशेंट में। इसलिए ब्लैक रेजिन हम लोग मोस्टली जो है 15 to 20 इतने क्वांटिटी में रात को पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं। एंड उससे बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट अच्छे से पेशेंट को जो है सेटिस्फैक्ट्री मोशन उससे मिलता है, जो कि नॉर्मल रेजिन से उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा है। तो इसलिए ब्लैक रेजिन्स जो है वो हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसमें। Yes. And next question is from Dr. Chaheti. Ma'am, can you please tell what the Punaravartak Jwar Mukti Lakshan are? Are they same as a Samyak Jwar Mukti Lakshan, or in any patient of having history of any kind of viral or malarial fever or any fever? What are the Lakshans a Vaidya expect from patient after giving treatment of Punaravartak Jwar, which confirms that Punaravartak Jwar is gone? ओके। I hope the long question is clear for you. यस यस यस। सो इसमें जो है ना, तो पुनरावर्तक ज्वर के लक्षण जो है, जैसे मैंने बोला कि हर टाइम जो बुक पिक्चर है उसके हिसाब से हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो पेशेंट के लक्षण जो है वो हर पेशेंट के अलग अलग रह सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स में जो है वो अंतर्वेगी ज्वर के हिसाब से बाकी लक्षण, जैसे टेम्परेचर उतना रेज नहीं है, बट बाकी जो लक्षण है ज्वर के, जो भी मे बी वातज रहेंगे, पित्तज ज्वर के रहेंगे, कफज ज्वर के रहेंगे, वो दिखाई देते हैं पेशेंट को। तो उनके जो पहले से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो ज्वर मुक्ति के लक्षण जो बाकी ज्वर मुक्ति के बोले हैं वो तो है ही, उसी के साथ इसमें जो एक्स्ट्रा हमें धातु पाक के अगर लक्षण दिख रहे हैं पेशेंट में, जो मैंने बोला कि जो धातु सारता के जो अवयव है हमारे, जैसे रक्त धातु का जो है अक्षी एंड पाद और हस्ततल वगैरह जो बोला है, तो वहां पे हमें अगर कुछ संप्राप्ति दिखाई देती है, तो वो धातु पाक के लक्षण हमें जो कम होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि माधव निदान में भी मैंने रेफरेंस दिया था कि धातु पाक के लक्षण जो दिए हुए हैं, वो लक्षण अगर हमें कम हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पे संप्राप्ति का भंग हो रहा है ऐसे हमें दिखाई देता है। और जो नॉर्मल ज्वर मुक्ति के लक्षण है वो हर टाइम पेशेंट में मिलेंगे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ज्वर का वेग जो है, जैसे नॉर्मल ज्वर का वेग आया है वैसे वो वेग वहां पे हर टाइम दिखाई देगा ऐसे अपेक्षित नहीं है। तो जो ज्वर का जैसे बोला है कि 7 दिन के लिए लंघन बोला है, उसके बाद में जो घृतपान बोला है, या जीर्ण ज्वर में भी घृतपान बोला है, तो वैसे करने के बाद जो ज्वर से रिलेटेड लक्षण है या संप्राप्ति है उसमें हमें भंग दिखाई देता है, पेशेंट के इसमें रिलीफ दिखाई देता है, तो उससे हम लोग वो अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट का जो है तो वो ज्वर मुक्ति या दोषों का पाचन जो है, जो वहां पे ज्वर में बढ़े हुए हैं बट यहाँ पे अभी उनका पाचन हमें करना था या शोधन करना था, वो शोधन अच्छे से हुआ है, वो वहां पे हम अनुमान प्रमाण से दिखाई देता है। बट ज्वर मुक्ति के जो नॉर्मल ज्वर मुक्ति के लक्षण है वो हर टाइम दिखाई देंगे ऐसे नहीं कह सकते वहां पे। Okay, good. And I guess there are no more questions. If anyone has any questions, any doubts, they can put in the chat box or raise your hand. We will unmute you and you can ask the question. Okay, man, can you tell the mode of action of Rajani Yoga in chikungunya? Rajni Yog is not used in chikungunya. Rajni Yog we use in the chicken pox और measles की जो हिस्ट्री रहती है उसमें आफ्टर चिकन पॉक्स और आफ्टर मीजल्स जो शरीर में पित्त या उष्णता या रक्त विदग्धता जो बढ़ी है, तो उसमें रजनी योग का यूज करने के लिए पांचभौतिक चिकित्सा जो है, तो उसमें उनका जो अम्ल और क्षार का या पृथ्वी महाभूत प्रधान वहां पे हमें जो द्रव्य यूज करने हैं, उसमें जो गैरिक है वो और निशा दैट इज रजनी उसका यूज हम लोग करते हैं। तो आफ्टर चिकन पॉक्स या फिर आफ्टर मीजल्स जो बच्चों में भी या फिर बहुत बार बड़े लोगों में भी फिर से दिखाई देते हैं, उसके बाद उसका जो इफेक्ट वो धातुओं पे या दोषों पे आया है, तो वो दोष का शमन करने के लिए या रक्त विदग्धता जो है वो कम करके पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्यों का यूज वहां पे जो पांचभौतिक सिद्धांत है अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली हमने वहां पे किया है। चिकनगुनिया के इसमें हम लोग रजनी योग का यूज नहीं करते हैं।
Okay. Any case of multiple myeloma treated with the principle of पुनरावर्तक ज्वर? मेरे यहाँ पे मैंने खुद ने ट्रीट नहीं किए हैं, बट सर के यहाँ पे हम लोग ने बहुत से केसेस देखे हैं। रीनल फेलियर के या रीनल कैंसर के केसेस मैंने खुद ने देखे हैं सर के यहाँ पे। नॉट एग्जैक्टली मल्टीपल माइलोमा मैंने अभी तक मतलब मेरे इसमें देखने में नहीं है सर के इसमें, बट सर के क्लिनिक में बहुत से केसेस कैंसर के हैं जिसमें पुनरावर्तक ज्वर का जो कंसेप्ट है वो यूज़ किया हुआ है सर ने। मैं सर से ऑफ कोर्स पूछ के आपको जो ग्रुप है अपना उसमें डालूंगी अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिलती है तो। Okay, Anand, I feel there are no more questions left. You can take over. Yeah. Thank you, Dr. Sneer. Okay, so thanks everybody for your active participation and engaging questions. We hope you found this session very valuable and informative. Once again, a big thanks to Dr. Tejashree Bhalerao Patil for sharing her expertise with us today, and thanks to all the participants for joining us. We look forward to seeing you all in our next Gyanvardhini session, which is scheduled on 21st of May to be conducted by Dr. Beatrice Deschamps. The topic is dental examination in Ayurvedic and modern clinical practice. So I'm going to share our spam-free Gyanvardhini WhatsApp community group as well, which provides spam-free updates on the upcoming webinars. And we also have a YouTube channel. You can check out all our earlier Gyanvardhini sessions over there as well. You'll soon see that in our chat. Okay. Thank So you in for case if, inviting. yes, ma'am. So thanks once again to everybody, and thank you, Dr. Tejashree, for your precious time to share your knowledge with all of us. Wishing you all a wonderful evening, and we'll be closing the session now. Yeah, thank you. Have a great day, great evening. Jyoti.